acceleration it will produce, that will you will identify it. Yeah? ठीक है ना? तो ये सारे चीज you will be finding from the NCERT book. Exact information will get it from the NCERT book. हाँ, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एनसीईआरटी बुक, बट one by one, if you just word by word, sentence by sentence, if you follow the NCERT book, you will be getting your concept will be cleared. And other than NCERT book, you may refer the SC Verma, or you may refer the DC Pandey book also. और जो उससे ज्यादा यूज करना चाह रहे, they can you can सिंगेज भी यूज कर सकते हैं. इन दैट मैनर दो तीन बुक्स तुम यूज करोगे, यू विल बी फाइंडिंग द डिफरेंट कंसेप्ट्स, रियल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. ठीक है ना? अभी देखो, मैं अभी तुम लोग चीज कुछ थ्योरी, दो थ्योरी आज पढ़ाने जा रहा हूँ. वन इज द इम्पल्स, IMPULSE. व्हाट इज दैट इम्पल्स? आज इम्पल्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जो भी तुम क्लास 10th में 9th में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है. सो व्हाट इज दैट इम्पल्स? सो पढ़े अभी चले. Okay, that you come for the impulse. Now you write, all of you write impulse. ढंग से समझना इम्पल्स क्या होता है. अब इम्पल्स देखो, दैट इम्पल्स, नाम सुने होंगे इम्पल्स है. यू राइट इम्पल्स क्या होता है. इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पल्स ऑफ ए फोर्स. Impulse of a force, impulse of a force is defined as impulse of a force is defined as the change in momentum, defined as the change in momentum change in momentum change in momentum produced by the force. Impulse of a force is defined as the change in momentum produced by the force. By the force, and is equal to and is equal to the product of the force and is equal to the product of force and the time for which it acts. देखो, impulse of a force is defined as the change in momentum produced by the force and is equal to the product of the force and the time for which it acts. क्या होता है इम्पल्स? हम इम्पल्स पर्टिकुलरली वर्ड के लिए यूज करते हैं. यहाँ पे इम्पल्स इज नंबर द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. सपोज इफ यू अप्लाई द फोर्स, हम कोई फोर्स हम दे रहे, what happens to that body? The body will be changing its velocity. That means it will be changing its momentum. तो which one is the impulse? इसके बीच में इम्पल्स क्या चीज है? तो इम्पल्स एक्चुअली उसको मलते हैं हम लोग पर्टिकुलरली, एक हिंदी वर्ड बोलते हैं, दैट इज जर्क. हम जर्क देते, झटका देते, जो होता है झटका जो होता है ना,
That is the impulse. Means the force is acting for a short interval of time. The force is acting for a short interval of time. वही होता है impulsive force. झटका देना है. कहां पर होता है? short interval of time में force apply हो रहा है. Whenever the cricket player strikes the ball, and whenever the cricket player puts six, so what happens? The ball is touching the bat, and again it is the ball is leaving out. Leaving out. That is impulse. शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो फोर्स मोमेंटम को चेंज कर देता है, फाइनाइट मोमेंटम चेंज कर देता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द impulsive force, and that impulse is nothing but the product of the force and the time interval for which it acts. Suppose हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to Newton's second law, what you get it? F equal to, you know it, F equal to, if you represent it by vector form, that is equal to mass into acceleration, that is always the net force, and that is equal to mass into, what is the acceleration? Change in velocity, that is v2 minus, v minus u कर देता हूँ डायरेक्टली, तुम लोग के लिए समझ में इजी आ जाएगा, v minus u अपन डेल्टा टी टाइम इंटरवल v माइनस u by t, और mv माइनस mu by t कर सकते हैं नहीं? We can write it as the f equal to, or f equal to हम लोग को नेक्स्ट वी आर गेटिंग mv वेक्टर माइनस mu upon delta t. So what the f vector minus mu vector indicates? That is the change in momentum of f delta t. We are using f vector into delta t, that is equal to mv vector minus mu vector, and this is called impulse. ये होता है तुम्हारा impulse, because change in momentum, change in momentum बॉडी में आ रहा है, and that is nothing but the f into delta t. Simply you are writing this impulse. What you are doing? Impulse of a force equal to change in momentum. The impulse of a force, हम डायरेक्ट लिख रहे impulse of a force equal to, इसको impulse of a force बोलते हैं, f delta t, f into delta t, मतलब force applied for the short interval of time, and this is equal to change in momentum, mv minus mu. That it means it changes the final momentum. But कौन सा चीज तुमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे एक ही चीज तुम लोग समझ में आ गया, फोर्स तो फोर्स है, नो डाउटली, फोर्स इज द फोर्स, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. इंपल्स ऑफ ए फोर्स क्या है? Impulse of a force means the force is acting for a short interval of time. Whenever the force is acting for a short interval of time, that will be changing its momentum. But that change in momentum will be finite one. That is the impulse of a force. So impulse is nothing but the change in momentum, and that is equal to product of the force and the time for which it acts. ये होता है, ये चीज को तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है, और उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है. सिंपल हम एक ही स्टार लिख सकते हैं यहाँ पे. इफ डेल्टा टी, ये जो टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा हो जा रहा है, द फोर्स इज कॉल्ड impulsive force. If delta t equal to 0 tends to 0, the force is called impulsive force. Impulsive. So video is not Impulsive clear. force. ये not clear. Video. I think तो दिख रहा है बहुत clearly. If delta t tends to 0. Yes sir, मेरे एंड में भी दिख रहा है. Video is not clear. दिख रहा है ना? सर वो बार बार नहीं Yes दिख रहा है? sir. बार बार मंसूर तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा. देखो सर मेरे तुम साइड लोग में का भी पूरा नेट क्लियर है. क्लियर है ना? हाँ, मतलब तुम लोग का नेट का प्रॉब्लम, थोड़ा स्टैंडर्ड नेट डालो ना, ठीक है ना? ये मोबाइल फोन में वाईफाई कनेक्ट करने चाहे, क्योंकि स्कूल कब खुलेगा देयर इज नो गारंटी, तो वाईफाई कनेक्शन करो.
नेट में नेट नेट मेरे लिए मतलब एक छोटा मोटा नेट मत डालो, जैसे मोबाइल में 100 रुपया 200 रुपये डाल दिया तो उसमें काम चलाएंगे नहीं है। और वाईफाई कनेक्ट करो और अच्छे से नेटवर्क फैक्टर, because in online system what happens here in between the student and teacher, the net is playing the role. तो ये नेट को अपडेट करके रखना है, ठीक है ना। तो उसका ये इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होगा, यू टेल मी एसआई यूनिट उसका क्या होना चाहिए बताओ। इम्पल्स का, आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पल्स का एसआई यूनिट इट्स न्यूटन न्यूटन। सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, वेरी गुड, ये सिंपल समझ गए, न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड है। एंड सिमिलरली जब फोर्स, देखो हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द फोर्स, दैट फोर्स what will be equal to, that may be the constant force, that may be the variable force। समझ में आ रहा है, ये जो फोर्स हम तुम लोग का यहाँ पे कोई चीज सिचुएशन होने पर यू आर गेटिंग, यू जस्ट थिंक इट। जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स क्या हो सकता है, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स भी अप्लाई हो सकता है और वेरिएबल फोर्स भी अप्लाई हो सकता है। जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड टाइम, the what will be the nature of that graph, and which one is the measure of the impulse of a force. Suppose I'm coming to the, for constant force, if the force is applied constant है, for constant force another star में लिख रहा हूँ, for constant force देखो, for constant force के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं constant force, ये जो F बनेगा देखो, ये ग्राफ बन रहा है देखो, मैंने F लिया यहाँ पर y एक्सिस में and T I am taking an x axis. The graph, what will be the graph? Nature of the graph. Whenever t starts from 0 to increasing, the force is constant. The force is constant. Constant force मतलब it will be straight line. तो ये जो एरिया होता है देखो, ये जो एरिया अंडर एफटी ग्राफ, व्हाट इट इंडिकेट्स, एरिया अंडर एफटी ग्राफ इंडिकेट्स द इम्पल्स। Impulse. तो यहाँ इम्पल्स समझ में रहे, तो एरिया अंडर एफटी ग्राफ, तो एरिया अंडर एफटी ग्राफ विच टाइम एक्सिस है गिव्स, ये जो ग्राफ हो गया, ये हो गया एफटी ग्राफ है, द एरिया अंडर एफटी ग्राफ व्हिच टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द इंपल्स ऑफ ए फोर्स, ठीक है। फॉर वेरिएबल फोर्स, इफ यू टॉक अबाउट द वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स है, जब फोर्स का वेरिएबल ले ले तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, ग्राफ एफ है, वेरिएबल मतलब चेंज होगा, टी है, ये एफ है, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ विल बी चेंजिंग। सपोज मैंने बोला ये हो गया ग्राफ हो गया, ऐसे करके ग्राफ हो गया, मान लो ऐसे भी हो सकता है वेरिएबल, ये T1 टू T2 बीच में टाइम है, तो ये जो एरिया हो गया दैट इज ऑल्सो, that is the area under FT graph. This is the FT graph. The FT graph becomes a curve, and the area under FT graph, that is indicating the impulse of a force। यहाँ से मान के चलो, if A B C, जो एरिया अंडर दिस कर्व, ABC कर्व के अंदर जो एरिया होता है, ये तुम्हारा इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, उसको माना जाता है। अभी उनका एप्लीकेशन देखो, हम क्या क्या चीज हमको ये पे कौन सा चीज यू हैव टू रिमेंबर वेरी importantly, you have to remember these things। one thing is that impulse word whenever it is coming, the दिमाग में तुम्हारा आ जाना चाहिए change in momentum, mv minus mu, and that is equal to f into t। दो formulas you are getting it here। और उनका concept क्या समझ में आ रहा है ना, impulse of a force मतलब that the force is acting on a body for a short interval of time, कम टाइम में अप्लाई हो रहा है, वो टी हमेशा डेल्टा टी, हम इसीलिए डेल्टा टी ले रहे हो। यू कैन टेक टी आल्सो, नो प्रॉब्लम, एंड फाइनली यू कैन टेल टी टेंड्स टू 0, बट डेल्टा टी आई एम इंडिकेटिंग मतलब टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो इफ यू अप्लाइड, कहां कहां पर एप्लीकेशन होता है इम्पल्स का, लेट अस थिंक फॉर द एप्लीकेशन, वहां का यूजेस, इलस्ट्रेशन, इम्पल्स को कैसे हम समझे, इम्पल्स का मीनिंग को क्या कैसे समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट एक एप्लीकेशन ले रहा हूं, a cricket player lowers his hand, a cricket player lowers his hand while catching a ball। तुम देखे होंगे अभी आईपीएल चल रहा है, जो बहुत ऊपर बॉल उड़ जाता है और
बॉलर प्लेयर कैच करता है कैच को बॉल को, वो कैसे करता है, कैच करके वो थोड़ा पीछे ले लेता है, कैच करके नीचे तरफ ले आता है, कैच करके नहीं आएगा तो टाइम इंटरवल उनका बहुत छोटा हो जाएगा। सपोज, मतलब व्हाट हैपेंस हियर, सपोज आई एम टेलिंग द दैट इज द एक क्रिकेट प्लेयर का हाथ में बता रहा हूँ यहाँ पर, ये हाँ हाँ, क्या हुआ, मान के चलो ऐसे है क्रिकेट प्लेयर, एक क्रिकेट पर जब बॉल यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर बॉल जब यहाँ पर हाथ में पकड़ेगा वो उसको, वो धीरे हाथ को इस तरफ ले आता है, नहीं, ये हाथ को इस तरफ ले आता है, नीचे तरफ ले आता है, ऐसे करके नीचे तरफ ले आता है। वो क्यों ले आता है नीचे तरफ, हाथ को पहले यहाँ पर बॉल को, ये बॉल में जब इनिशियली बॉल स्ट्राइक किया तो उनका वेलोसिटी इनिशियल जब स्ट्राइक कर रहे हैं, बिफोर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द हैंड, उनके पास बॉल के पास मोमेंटम एम भी था, बिकॉज इट वाज मूविंग विद वेलोसिटी। एंड व्हेनेवर ये पकड़ लिया एंड उनका वेलोसिटी मोमेंटम जीरो हो गया, तो मतलब इनका मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम एम भी टू जीरो, its momentum changes from mv to 0, and after what time he has taken, very short interval of time is taken, मान के चलो 0.1 सेकेंड लिया टाइम, जब 0.1 सेकेंड में mv2 जीरो हो गया, सम अमाउंट ऑफ टाइम ऑलरेडी हैज टेकन, बट इस दूसरी केस में मोमेंटम mv था और यहां से आने के लिए वो टाइम बढ़ गया, उनको वो मोमेंटम को जीरो करने के लिए उनको टाइम बढ़ गया, मान के चलो 0.5 सेकेंड ले लिया। तो ये दोनों में फर्क क्या पड़ता है, एंड फर्स्ट टाइम व्हेनेवर ही कैचेस द बॉल सडनली and is not moving his hand down, so the something whatever will happen, the change in momentum will be taking place in a small interval of time. As and when he lowers his hand, the change in momentum, same change in momentum takes place, but more time takes. So what will happen, you know, from the f equal to change in momentum mv minus mu by delta t, time you are taking it the force, and if the same change in momentum is taking place mb, but time interval increases in second case, in second case the time interval increases, as the when time interval increases the force exerted on the hand decreases, delta t बढ़े तो f क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, तो इसीलिए उनका हाथ में चोट नहीं लगेगा। So तुम बोलोगे सर we can apply the Newton second law, no doubt you can use the second law, but here you are using the word impulse because of these things happen with a very short interval of time, short interval of time में उनको हम सब पकड़ते, ठीक है ना, इसीलिए impulsive force, that situation also impulsive हम माना जाता है उसको। ये जो 0.5 सेकंड में भी तुम लोग को मान के चलो तुम बॉल पकड़ लिया, बॉल को पकड़े और आफ्टर 10-10 मिनट्स बॉल नीचे गिर गया, अंपायर बोलता है क्या वो साइड आउट नहीं है, अंपायर पहले बॉल, अंपायर का ऑब्जर्वेशन रहता है, व्हेन द बॉल हैंड इमीडिएटली ऑब्जर्वेशन आ गया द प्लेयर इज आउट, कैच हो गया, 10 मिनट बाद वो बॉल गिर जाए ना, अंपायर उनको मानता नहीं, वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज all the things whatever is taking places by considering the impulse here, because this thing happens within a small interval of time, delta t टाइम में हो जाना चाहिए, तो वही डेल्टा टी टाइम बीच में फोर्स विल बी एक्सर्टेड, बिकॉज द फोर्स में हाथ में भी चोट लगता है ना, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ज्यादा हो जाता है और कम होता है, वो डिपेंड्स अपॉन हाउ टू लोअर हिज हैंड डाउन और नॉट। तो इसीलिए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल, catching a ball, you simple right, a cricket player lowers his hand while catching a ball, a cricket player lowers his hand, a cricket player lowers his hand while catching a ball, full stop, he does so, वो ऐसे करता है, he does so
he does so to provide he does so to provide greater time. He Sir, to does provide. so to provide greater time, ज्यादा time है, greater time, or he does so to take more time to have the change in momentum. To have the change in momentum. Hence, a smaller force is exerted on his hand. Smaller force is exerted on the hand. भले वो टाइम 1 सेकेंड हो 2 सेकेंड हो but more time लग जा रहा है, so force exertion will be less because of that the impulse force carries the momentum, and that impulsive force also will be the force will be the more force will be striking or will give more hurt to your hand. You'll get more hurt if the time is not reduced. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. You can take it. Suppose a person is falling on a pakka floor and a कच्चा floor. पक्का फ्लोर और सीमेंटेड फ्लोर में कोई गिर रहा है, that he will be getting more hot than the कच्चा फ्लोर. जहां पर मिट्टी के फ्लोर में गिरेगा और सीमेंट का फ्लोर में गिरेगा, इस दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? सीमेंट का फ्लोर में whenever it falls, what will happen? Cement, immediately the momentum is changed. Immediately, time interval is very less. The floor doesn't yield. फ्लोर क्या होता है? सीमेंटेड फ्लोर कंप्रेस थोड़ा नहीं होता है, यील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखाता है. सो इसीलिए मोमेंटम चेंजेस सडनली. जहां पर मोमेंटम चेंजेस सडनली, there you get more hot because the time interval is very less and you can get the hot. और कहां पर साइकिल सडनली होता है? शक्कर, शक ऑब्जर्वर जो गाड़ी में लगता है ना, शक ऑब्जर्वर बाइक में हो, आजकल साइकिल में भी शक ऑब्जर्वर रहता है, एंड दैट इज टोल्ड एज द सक्कर्स. ये सक्कर्स क्या करता है ना, जब जर्क में आ जाते तुम लोग गाड़ी में, जर्क में आ जाते, ध्यान रखो मैं जो बोलने जा रहा हूं, जब जर्क में आओगे शक्कर के कारण से, suckers actually the physics word is the suckers and we are using in the local language, that is the shock absorber. And you must have seen in the bike में साइकिल के आगे सामने रहता है, जब चलते रहोगे आगे दब 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 होता है, नीचे ऊपर होता है, वही शक्कर से. whenever you fall into the jerk, whenever you fall into the jerk, what will happen? And your suckers will be compressed, नीचे तरफ चला जाता है, again it comes back. वो नीचे जाना है और ऊपर आना है, इस टाइम में ज्यादा टाइम ले लिया. जो फोर्स वहां से मिलता है हमको, एक्सर्शन फोन है फोर्स, वो फोर्स will have to change the momentum of the body, and that will be the less force will be exerted on your body. राइडर जो चलाते हैं गाड़ी ना, उनके ऊपर बहुत कम फोर्स लगेगा. मैं क्या बोल रहा हूँ, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई. सक्कर्स के कारण से चेंज इन मोमेंटम सडनली नहीं होता है. सपोज तुम लोग साइकिल में जा रहे जिसमें सक्कर्स नहीं है, एक गाढ़ा में गिर गया, क्या होगा? तुम लोग का मोमेंटम एम भी था, जब गड्ढे में गिर गया तुरंत जीरो हो गया. मैंने एम बी टू जीरो आने में बहुत जल्दी टाइम लग गया, बहुत कम टाइम लगा. मीन्स कम टाइम लग गया मतलब आज पर दी फॉर्मूला, मोर फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन योर बॉडी. इसीलिए जर्क में जाने के लिए जिस गाड़ी में सक्कर्स होता है, बिकॉज because what will happen, you will not get the change in momentum suddenly. We do not require the momentum changing in a small interval of time, so you can get it. So similarly you can write automobile. In the automobiles, the suckers are provided, succers, suckers are provided in the automobiles when the vehicle falls into the jerk. Sir, falls please repeat. suckers are, succers, suckers are provided. सक्कर्स के ब्रैकेट लिखो, सक ऑब्जर्वर है,
suckers are provided on the vehicle. The change in momentum, the change in momentum takes place in a longer time due to the sucker. The change in momentum takes place in a longer time due to the suckers, but suck observers. Hence, a lesser force, LESSER, hence a lesser force is exerted on the rider. Hence, a lesser force, if you understand it right, if a particular word, particular sentence physics में लिखना जरूरी नहीं है, hence a lesser force is exerted on the hand. कभी कभी you will be finding what is impulse momentum theorem. What is the impulse momentum theorem? ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्या लिखोगे बताओ? Impulse momentum theorem. State and prove impulse momentum theorem. ये क्या है? मतलब इसमें तुम लोग घबराओगे, अरे सर impulse momentum theorem क्या है? अरे impulse is nothing but the change in momentum. This is the impulse momentum theorem. तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? The impulse of a force is equal to the total change in momentum produced by the force. सीधा लिखोगे, the impulse of a force is equal to the impulse momentum theorem सब क्वेश्चन पूछे, how you can write it? The impulse of a force, what the statement tells, the impulse of a force is equal to the impulse of a force is equal to the total change in momentum, equal to the total change in momentum the impulse of a force is equal to the total change in momentum produced by the force. बात एक ही है ना, produced by the force, मतलब impulse of a force, हम हमेशा impulse वर्ड यूज नहीं करते, impulse of a force is the total change in momentum produced by the force. ठीक है ना? तो उसको प्रूव करने के लिए बोल दे तो कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, सीधा सीधा देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, either you can use the class 9 standard method, or you can use the direct derivative form में f equal to rate of change of momentum, a vector equal to dp by dt, यही था ना, dp by dt, और f dt कितना, how much you are finding, f dt equal to dp, f dt equal to dp. If the momentum changes from p1 to p2 in time interval 0 to t, ठीक है ना, what will be the impulse? So if the momentum, ये देखो, if the momentum देख रहे हैं ना, momentum changes from p1 to p2 in 0 to t time. If the momentum changes from p1 to p2 in 0 to t time, so what you have to find out? The impulse equal to f dot dt. समझ रहे हैं ना, क्या बोलो, f dot dt, सेकंड पेज चलो. If the momentum changes from p1 to p2 in 0 to t time, Yes, sir. Yes, simply sir. simply you have to integrate it. So integration of f dt
0 टू t टाइम लिया और राइट साइड को इंटीग्रेशन क्या करूं मैंने, dp वेक्टर इंटीग्रेशन दैट इज p1 टू p2, ये मेथड करो, p1 to p2 and this will be equal to what will be, this will be equal to dp का इंटीग्रेशन होता है p, you can tell it as the p2 minus p1 है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनली इंपल्स कितना हो गया, इंपल्स, इंपल्स इसको हम इंपल्स बोलते हैं, f डॉट डी टी, एफ डॉट डी टी जीरो टू टी, ये होता है इंपल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पी टू माइनस पी। तुम बोलोगे सर ये डेरिवेटिव फॉर्म लिखने में हमको डर लगता है, बट एफ डी टी जो होता है रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑल द फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि डायरेक्टली एफ ये मे बी वेरिएबल आल्सो, नो प्रॉब्लम, और कांस्टेंट आल्सो। सर हाँ सर, तो एफ डी टी जो है उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे? नहीं, उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे, बिकॉज dt मतलब टाइम के वेरिएबल, यहाँ पर f मान के चलो कांस्टेंट है, जब f कांस्टेंट हो गया तो f बाहर आ जाएगा, तो f डेल मतलब फोर्स कांस्टेंट फोर्स हो गया, f इंटू टी हो गया। हम सिर्फ तुम लोग सर f और t लिख दे तो क्या हो गया प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इट इज एप्लीकेबल फॉर द कांस्टेंट फोर्स के लिए। जब वेरिएबल फोर्स के लिए हम कैसे करेंगे, वेरिएबल फोर्स के लिए f फिगर विल बी गिवन टू यू and accordingly you can calculate, ये इसलिए हम डिफरेंशिएशन integration method you can follow it to calculate the impulse। भाई ये एफ डी टी इंटीग्रेशन का ये मीनिंग होता है तुम्हारा, कहां पर इंपल्स लगेगा, नेट इंपल्स मतलब एफ डी टी इंटीग्रेशन ले लिए, वो इट इज एप्लीकेबल बोथ फॉर द वेरिएबल एंड दैट इज द वेरिएबल फोर्सेस एंड फॉर द कांस्टेंट फोर्स के लिए, बोथ के लिए यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, you tell it as the impulse momentum theorem, ठीक है ना। अभी देखो तुम लोग का कांस्टेंट फोर्स के लिए क्वेश्चन हम वाले एक क्वेश्चन करते, देखो सिंपली यू कैन डू इट। ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो, ये बैट्समैन हिट्स द बॉल, ए बैट्समैन हिट्स द बॉल straight back to the bowler, straight back to the bowler, straight back to the bowler without changing its initial speed, without changing its initial speed, without changing its initial speed, उनका जो स्पीड था 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज, मास ऑफ द बॉल एम इक्वल टू, मैंने दे देता हूं, मतलब मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, 1 kg, determine the impulse imparted to the ball, determine impulse imparted, determine impulse imparted to the ball। सर m इक्वल टू 0.15। हाँ m इक्वल टू, तो हम सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे ना, मैं तुमको डाटा दे रहा हूं, सॉल्यूशन में 0.15 kg दिया बॉल है, तो इंपल्स इम्पार्टेड, इंपल्स का फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पर पक्का लग रहा है, बिकॉज टाइम तो दिया ही नहीं, तो हम एफ टी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते नहीं, तो यहाँ पे सिंपली इंपल्स इम्पार्टेड कितना होगा फॉर्म, impulse, anybody can tell me, impulse equal to change in momentum, impulse equal to change in momentum, mv minus mu. Who can tell me the answer? There's just I would like to tell Bandana.
वंदना यू टेल। ये सीधी सी का क्वेश्चन है वंदना। Yes, sir. तो यू जस्ट व्हाट विल बी द आंसर? Sir, don't know. So might be Sir, u is equals to sir, u is equals to 12. Sir, V will be 0. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वंदना यू टेल मी यू कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पर? So u is equals to 12. Sir, 12 12. मीटर 12 मीटर पर V सेकेंड। वी is कितना? equals to 0. 0। And हाँ m is equals to 0.15. हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो। ए हो गया एम इक्वल टू 0. ए डाटा तेरा एम इक्वल टू 0. सर यहाँ पे हाँ विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड लिखा है ना। Yes, हाँ तो सर v yes v sir. जीरो V कैसे जीरो होगा? माइनस टू इनिशियल स्पीड इक्वल है सर, v जीरो है ना होगा। देखो सर एक v एक जीरो एक नहीं होगा, v भी 12 ही रहेगा ना। हाँ ठीक है। ये कौन बोल रहा है उसको? कंचन। सर Yes. यू माइनस 12 होना चाहिए। हाँ कंचन कितना बोले? एक एक करो। कंचन सर वो सेम होगा ना 12 मीटर पर भी सेकेंड। अगर 2 मीटर पर सेकेंड, ये कंचन वाला 12 मीटर पर सेकेंड। और सुरम्या ये सही है? सर वो 12 कैसे रहेगा, क्योंकि वो तो जाके मतलब तो कंफ्यूज में मत रहना। यू डोंट बी कंफ्यूज। द क्वेश्चन इज टेलिंग विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड बोला 12 मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूज टोटल नहीं होना है। टेल मी द करेक्ट आंसर। इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, उसके अंदर क्या है छुपा है। आयुषी चटर्जी Yes, sir. क्या होगा बता? Sir, I think the V will be same only, 12 meter per second. 12 मीटर तो मतलब इम्पल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। यस सर v अच्छा। माइनस 12 होगा क्या? माइनस 12 होगा। -12 सर इम्पल्स जीरो नहीं होगा। सर V -12 होगा। V -12 ही लगता है। माइनस में जाएगा सर, रिवर्स में बॉल फेंकता है ना। कि दिव्या बोल रहे ना? कौन है? सर अनीशा पर्सन बोला। है अनिशा। ठीक है। और एनीबडी जस्ट इंटरेक्ट में कोई भी मुंह तो खोलो कम से कम। यू जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। सर डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर एक वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। यस कौन सा सर। नेगेटिव? Yes, sir. कौन सा अपोजिट डायरेक्शन होगा जरूरी थोड़ी। कि वो बैक आ रहा है सर फिर से, इसलिए। सर जो mv होगा हाँ वो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ हाँ। क्वेश्चन देखो, ए बैट्समैन हिट्स द बॉल स्ट्रेट बैक लिखा ना, स्ट्रेट बैक टू द Yes. बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, बट वेलोसिटी नहीं बोला। वर्ड यूज देखो, विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी बोल दिया होता तो तुम लोग यहाँ पे भी 12 भी हो जाता। बट विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड, स्पीड का मतलब डायरेक्शन सर चेंज यू होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। -12 मीटर सेकेंड। तेरा माइक को कम से कम ठीक रख। तेरा माइक पूरा स्टेज टाइप का बज रहा है। u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड एंड वहां पे जो स्ट्राइक कर रहा है उनका डायरेक्शन वहीं पर चेंज हो गया। ये हो गया -12 मीटर पर सेकेंड। -12। जब -12 मीटर पर सेकेंड डालोगे यहाँ पे फॉर्मूला में, यू कैन गेट इट। दिस इज 3.6 Yes, sir. 3.6 meter. 3.6 मीटर। 3.6 2 ये MV न्यूटन 2 सेकेंड। MV हो जाएगा। ये 12 प्लस 3.6 12 न्यूटन हो जाएगा। सेकेंड। 12 प्लस 12 दैट इज 0.15 जो भी होगा वैल्यू जस्ट माइंड का 0.0 दैट इज u का डायरेक्शन को 12 लिए, v का डायरेक्शन को माइनस ले लिए। नहीं V mv माइनस माइनस है नहीं फिर भी गलत हो गया। देखो यहाँ पे तुम लोग क्या लिए? u को क्या लिए? 12 लिए, v को V u को को 12। हाँ इसमें क्या गलत देखो, मीटर पर सेकेंड v हो गया -12 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। तो इसमें डालोगे तो तुम्हारा इसमें माइनस हो जा रहा है। देखो एम बी मतलब हो गया, माइनस एम कॉमन गया, -12 दैट इज इक्वल टू 0.15 इंटू -24। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना मिला तुम्हारा? 3.6 ना। -3.6 -3.6 आंसर हो गया तुम्हारा -3.6 न्यूटन सेकेंड ना। इम्पल्स हो गया -3.6 न्यूटन सेकेंड। यू आर गेटिंग द आंसर -3.6 न्यूटन सेकेंड।
तुम लोग क्यों फंस जाओगे कंसेप्ट क्लियर में देखो. सपोज इफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज, एक जगह में रख देगा 3.6 न्यूटन सेकेंड, एक जगह में रख देगा -3.6 सेकेंड न्यूटन सेकेंड. The which one is the correct in between the 3.6 and -3.6? The correct is the -3.6 Newton second. You do not expect the mark from the whenever you write the 3.6 second because of जो force जो apply हो रहा है, वो force जो momentum change कर रहा है, वो कहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है. देखो इन बैट किस तरफ, टुवर्ड्स द बॉलर तरफ जा रहा है, तो टुवर्ड्स द बॉलर तरफ जा रहा है इम्पल्स. तो हम बॉलर टू बैट्समैन तक जो डायरेक्शन को प्लस ले रहे, और बैट्समैन जो रिवर्स बाउंड मार रहा है, उनको स्ट्राइक कर रहा है, वो टुवर्ड्स द बॉलर जा रहा है. सो दैट इम्पल्स व्हिच एवर इज एक्टिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन -3.6 न्यूटन सेकेंड. इसीलिए the negative sign indicates the direction of the impulse is from the batsman to bowler. The impulse क्या हो रहा है, batsman to bowler, because which is applying the force? Batsman is applying the force, and that impulse is directed from the batsman to bowler. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो ये छोटे छोटे Yes, केसेस के sir. लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 0 हो जाएगा. ठीक है ना? तो you take care for that impulse. Your time is over, I think. In the next class, we will be discussing conservation of linear momentum, और उसके बाद different contact force, pullage force, ये सारे questions एक period लेंगे. And the next week we'll start it. Okay. All right. Thank you, very sir. much. Thank- Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.